addressing religious problems, invoking विवेकानंद आइडियोलॉजी विषय पे अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मैं बगैर समय गंवाए डॉक्टर श्रीवास्तव से आग्रह करूंगा कि आप आए स्टार्ट करें। डॉक्टर श्रीवास्तव। थैंक यू प्रोफेसर रंजीत जी। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तो मैं मार्कम कॉलेज प्रिंसिपल रंजीत सिंह जी का और विशेष तौर पर विष्णु शंकर जी का बहुत सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि मुझे ये उन्होंने अवसर प्रदान किया कि मैं कुछ अपने विचार इस विषय पे, जैसा कि अभी बताया, तो अपने विचार साझा कर सकूं। आवाज मेरी इको कर रही है क्या? नहीं, ठीक है। आप रंजीत जी अपना जरा माइक्रोफोन बंद कर। हाँ, तो साथ ही इस वर्चुअल मीडियम से जुड़े हुए हमारे कई मित्र, दूर दूर से साथी, उन सब का भी मैं स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी का लखनऊ से, प्रोफेसर राजेश जायसवाल, ललन सिंह बघेल जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूँ। मैं अब शुरू करता हूँ। So, in fact, I'm going to speak on addressing intolerance, invoking Vivekananda's ideology. These are some of the objectives of my research paper. First of all, I am going to define what is intolerance. Then we try to understand socio-cultural context of India, highlighting issue of religiosity, caste, and patriarchy. Then we further try to explore how a dominant group and its member developed an attitude of intolerance towards other, to analyze why in recent decades, with late capitalism, growth of information and technology, emergence of consumerism, consumerist culture, intolerance has emerged as a noticeable phenomena. So, अभी हाल की कुछ घटनाओं और भारत के सामाजिक परिदृश्य को अगर आप देखें, तो पिछले 3-4 दशकों में जो उदारीकरण और पूंजीवाद के साथ एक उपभोगवादी संस्कृति, या जिसको कहते हैं कंज्यूमरिस्ट कल्चर का जन्म हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य और हम सभी अलग थलग अकेले इस वस्तुओं के संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और इस अर्थों में हम अगर पारिवारिक स्तर पर भी देखें, तो कहीं ना कहीं इनटॉलरेंस, चाहे वो बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, और सामाजिक स्तर पे भी अगर आप जाएं और देखें, तो इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा, ऐसा मेरा मानना है, बढ़ी है। चाहे वो सामाजिक स्तर में जातीय वैमनस्य हो, या फिर धार्मिक वैमनस्य हो, या फिर राजनीतिक स्तर पर पार्टियों के आपसी वैमनस्य हो, तो इसका मूल कारण क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इनटॉलरेंस व्हाट वी आर फेसिंग? दिस इज माय मेन कंसर्न. So first of all, I am going to define what is intolerance. ये अक्षुणता क्या चीज क्या है, ये क्या बला है, क्यों ऐसा होता है? What are those mindset where we have this attitude? So to my mind, intolerance refers to a mindset of person or a group who does not accept others' opinions, worldview, and ideologies concerning religious, social, political matters or otherwise.
In fact, it distills cultural harmony, coordination, and co-integration among members of integrated society in varied ways, as it denounces all sort of difference, deviation, divergence in the name of order, security, and homogeneity. Here I want to highlight that sometimes what happened in the Indian context, we are saying that India is a diverse country in terms of class, race, caste, everything. But at the same time, we impose a kind of unity in that certain kind of homogeneity. We are emphasizing on certain kind of homogeneity, what we witness in recent 2 or 3 decades. So in this way, it creates a devastation for the people on the margin in any system when it backed and supported by the organized force of religion and politics, and especially capitalist class. Often it does not allow the possibility of dialogue, deliberation, and discussion, which is, to my mind, prerequisite of any democratic society. Overall, it discards or denounce the very presence of others. So, in this context, I'm going to study 3 things. First is, मेरी ये साइट ये दिख रही है आप सभी को? पंकज साइड में दिख रही है, बट इट्स नॉट मूविंग. अच्छा, मैं एक बार तो ये स्लाइड, हाँ, ये स्लाइड पता नहीं क्यों नहीं मूव कर रही. 1 मिनट. चलिए, अब ये मूव कर रही होगी शायद. जैसा अब ये दिख रही है? यस पंकज. हाँ. चलिए, ठीक है. सो जो मेरा पहला कंसर्न है, जिससे कहीं न कहीं ये जिस असमानताओं, जिस तमाम तरह की इनइक्वालिटीज, वेदर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस, तो सबसे पहला प्रश्न जो एक दार्शनिक या हम सभी उठाते हैं कि हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज आवर पर्पस, फ्रॉम वेयर वी हैव कम. सो all these questions, what they are basically referring, वो ये सारे questions क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं? हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि what is our identity, how we define identities. And in this paper I am going to explain that with very notion of identity, it leads towards sometimes a kind of intolerance. क्योंकि सारा मुद्दा ये है कि चाहे वो आपकी सोशल आइडेंटिटी हो, चाहे रिलीजियस आइडेंटिटी हो, चाहे पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी पर जब हम जरूरत से ज्यादा जोर देते हैं तो वो दूसरों के प्रति किसी ना किसी रूप में एक तरह की असहिष्णुता, एक तरह की इंटॉलरेंस क्रिएट कर देती. तो हमें इसके इंटॉलरेंस के स्रोत को खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में और खासकर धर्म या रिलीजन के संदर्भ में समझने के लिए, और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका विवेकानंद की थी. विवेकानंद को पढ़ते हुए मुझे अगर शुरुआती दौर में देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है, खासकर जब वो हिंदू धर्म पे बात करते हैं. जैसा कि वो लिखते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर में मानवता के गौरव का उपदेश देता हो. और वो दूसरी तरफ अगर जाएं तो वही सेम विवेकानंद ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान गरीबों एवं निम्न जाति वालों को का गला ऐसी क्रूरता से घोटता हो. अब ये जो विरोधाभास है, ये पैराडॉक्स क्या है? ये पैराडॉक्स मेरे हिसाब से धर्म अपने अंदर समाहित किए हुए है. धर्म इस अर्थों में अपने अंदर समाहित किए हुए है कि अगर हम धर्म के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को देखें, जैसा कि विवेकानंद ने कहीं ना कहीं वेदांत के
मेटाफिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सारी बात बताई है ज्ञान के उसमें, तो धर्म का एक व्यापक स्वरूप मिलता है। लेकिन अगर धर्म के जो व्यवहारिक स्वरूप है उसमें जहाँ पे आइडेंटिटी की बात होती है, वहां पे देखें तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि वो किस तरह से निम्न जाति या गरीबों या पिछड़ों का गला घोटता है धर्म। तो ये बात थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी समाज में आइडेंटिटी, व्यक्ति की आइडेंटिटी किस तरह से किस तरह से बनती है। और इस मामले में हमें देखना पड़ेगा कि जो कहीं ना कहीं मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन नेचर, और इसका किस प्रकार से दूसरों के साथ इस संबंध या इंटरेक्शन होता है, हाउ ह्यूमन और इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, and these interaction is possible against the background of these things, what I call social, rational, historical, material, political, economic, and at last religious. So whole idea is that when we are going to define, just for instance, take the example of Aristotle. Aristotle says that human being is a rational or social animal, for instance, Socrates. Then, for instance, another philosopher, Walter Benjamin, says that man is basically a tool maker. Or someone says that man is an economic being. Or in that context, Vivekananda talks about man is primarily a divine being. So now the issue is that when we are going to define ourselves, that how we are created and constituted in and through society. Here I quote that especially I refer the Heidegger notion that we are thrown in the world. So whole idea is that when we reflect on ourselves and find that, okay, as we are a transcendental being or something else, but when we are cognizing ourselves, when we are reflecting ourselves, we find that we are a social, we are historical, we are an economic being. I emphasize that. So now the issue is that how we transcend these limitations. Whole idea of religion is how to transcend that social, that religious, that historical, that economic being. And somehow Vivekananda is in his discourses struggling with these ideas. That's why we are seeing the paradoxes in different contradictions in Vivekananda writings. यहाँ पे एक और मैं कोट करना चाहूंगा कि जब विवेकानंद का पूरा आइडिया हम सभी को मालूम है कि जब ये तमाम तरह की असमानताओं की बात करते हैं, चाहे वो सामाजिक धार्मिक असमानता हो, तो एक जगह वो दरिद्र नारायण का बात करते हैं। वो वेदांतिक नजरिए से कि उस दरिद्र, उस जो कहीं ना कहीं एक लास्ट मैन है, उसमें भी वही दिव्य सत्ता मौजूद है। और वो कहते हैं कि, और ये देखने लायक है आज के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगले 50 वर्ष के लिए अन्य सभी व्यर्थ के देवताओं को अपने मन से निकाल दो, यही एकमात्र देवता है। वो देवता कौन है? दरिद्र नारायण, जो जागृत है, सर्वस्व उसी के हाथ, सर्वस्व उसी के पैर है, उसी के कान हैं, सभी वस्तु को आच्छादित किए हुए, अन्य सभी देवता सो रहे हैं। हम व्यर्थ के देवताओं को अनुगमन कर, किंतु उस देवता की, उस विराट की जो हमें चतुर्दश दिखाई दे रहा है, हम पूजा नहीं करते। सबसे पहले इसकी पूजा इस विराट देवता की। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जो गरीबी है, और भारत की अभी हमने कोरोना के दौर में देखा कि किस तरह से तमाम बड़े बड़े शहरों से, कस्बों से लोग गांवों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, और उसमें जो एक मानवीयता का कुरूप चेहरा नजर आया कि कहीं ना कहीं कितनी असहिष्णुता उस मामले में हो चुकी। तो विवेकानंद का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो रिलीजन का ये कॉन्टेक्स्ट था, इस पे वो एक तरह की आलोचना कर रहे थे, और साथ ही उसको वेदांत के नजरिए से रिलीजन का जो एक एथिकल कह सकते हैं कि जो डायमेंशन है, उस पे तमाम तरह की वैल्यूज को वो समझने की कोशिश कर रहे थे इस अर्थों में। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इसके बाद कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली कि इन इंडिया हाउ दिस what we call religiosity or caste, how identities, different identities are created. And then first of all, if you see that
Indian society, then we find Indian society is a kind of pluralistic society, as I already explained. For centuries, people belonging to various religion, race, caste, class, language, various ethnic culture background live together and engage with each other. Now the issue is that how they are cohabited. Here we are having a tradition of interdependence. कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जजमानी एक व्यवस्था थी, एक तरह का जो सिस्टम था, उसमें एक दूसरे का ताना बाना इस तरह से मतलब हमारे समाज में था। अब यहाँ पे दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एक तो है कि वर्ण के थ्योरी और दूसरी है जाति की थ्योरी। इन दोनों ही पे विवेकानंद कहीं ना कहीं वर्ण की थ्योरी पे तो फाइलेंट है एक तरह से, और उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं विवेकानंद और गांधी दोनों। और इस दिशा में अम्बेडकर जो है वो पूरी तरह से ये मान रहे हैं कि जो जाति की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं वो वर्ण की थ्योरी में इनबिल्ट है। और एक ये बड़ा डिबेट है इन दोनों चीज को। लेकिन अगर हम विवेकानंद और गांधी के उसमें देखें तो वर्ण की जो सारी थ्योरी है या एक तरह की इंटरडिपेंडेंस या पूरे समाज में एक ऑर्गेनिक यूनिटी को दिखाती है। तो वर्ण में जैसे हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर उनसे तमाम तरह की जातियां आगे निकलती हैं। अब इसमें जो विवेकानंद की जो पोजीशन है कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें कि विवेकानंद का ये कहना है कि वर्ण बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ण जो इनेट टेंडेंसीज है, हमारी जो एक हमारे मन मस्तिष्क चेतना में एक जो कार्य को करने की क्षमता है। क्योंकि अगर इसको देखें, और विवेकानंद कहीं ना कहीं सांख्य फिलॉसफी को इन्वोक करते हुए ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य में सत्व, रजस, तमस के गुण हैं, और उसी के अनुसार क्योंकि काम करता है तो कोई में सात्विक प्रवृत्ति होती है तो वो मान लो ब्राह्मण जैसा काम करेगा, फिर राजसिक प्रवृत्ति है तो वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय, और फिर इस तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे पुनः ये उठ जाता है कि ये एक तरह का स्ट्रेटिफिकेशन, एक तरह की हायरार्की तो इसमें इनबिल्ट है। और इस मामले में मैं थोड़ा सा बात अम्बेडकर पे करना चाहता हूँ, क्योंकि अम्बेडकर और गांधी की जो सारी डिबेट्स हैं, सारी चर्चाएं हैं, वो इसी मुद्दे पे थी कि अगर कास्ट को सिस्टम को इंडिया में खत्म करना है और कास्ट विषमता को, तो कहीं ना कहीं वर्ण सिस्टम को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि गांधी और विवेकानंद दोनों ही इस बात को नहीं मान रहे हैं। और धर्म के पूरे, अगर हम जो पूरी हिंदू धर्म की पूरी मेटाफिजिक्स है, जो पूरी सनातनी परंपरा है, उसमें वर्ण की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भूमिका या आप रोल कह सकते हैं। तो ये तो उसका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो गया। और भारतीय संदर्भ में अगर दूसरी जो बात मुझे नजर आती है कि जो वैमनस्य की जहां तक बात है कि वो एक तरह का जो वोमेन के प्रति एक तरह की असहिष्णुता या एक तरह का इंटॉलरेंस रहा है, ये भी एकदम साफ निकल आती है कि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी या पितृसत्तात्मक जिसे कहते हैं वो सोसाइटी रही है, और इसको कोई भी अनदेखा नहीं कर जा सकता। और चाहे वो किसी भी धर्म में देखें, भारत में जितने भी धर्म हैं, तो वो इसकी कहीं ना कहीं ये बात भी नजर आती। तो in fact, for centuries, women have been deliberately denied the opportunity for growth in the name of religion and socio-cultural practices. At the social political plane, women suffer from denial of freedom even in their home, repression and unnatural indoctrination, and unequal and inferior status, rigid caste hierarchy, and even untouchability. To certain extent, religious tradition and social institutions have their deep bearing on the role of status of women. If you see protest movements in the religion like Buddhism, Jainism, Veer Shaivism, Sikhism contributed to some improvement in the status of women. However, they continue to regard women primarily, this is to be noticed, that primarily as mothers and wives
and inferior to man in society. So दूसरा जो intolerance की बात मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, what I am trying to emphasize that because of this patriarchal nature of Indian society, we have been intolerated towards the woman. एक ये बात रही है. उसके बाद जो बात आती है कि अगर हम पूरी इंडियन सोसाइटी में देखें कि उसके बाद कैसे मॉडर्न टाइम में हम जब ये विवेकानंद, दयानंद, गांधी वगैरह की बात कर रहे हैं, जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, और उसके बाद की जो स्थिति होती है, जो लेट कैपिटलिज्म की स्थिति है, और जिसको कहते हैं कि हम एक उपभोगवादी संस्कृति आज के दौर में, क्योंकि इस पूरे ताने बाने में अगर आप देखो तो जो कैपिटल का रोल है कहीं ना कहीं पूंजी का, कि आज रिलीजन और रिलीजियस आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, या हम कहें वुमेन की आइडेंटिटी किस तरह से डिफाइन हो रही है, किस तरह से निर्धारित हो रही है. तो मुझे ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऑल आइडेंटिटीज आर कमोडिफाइड, उनका एक तरह का वस्तीकरण हो गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि रिलीजन कब नजर आता है समाज में, जैसे ही कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल किसी तरह का होता है, रिलीजन चारों तरफ छा जाता है. और उसके पीछे एजेंडा क्या होता है, उसमें वो सारे रिलीजियस प्रोडक्ट की सेल, वो सारा एक इकोनॉमिक एजेंडा उसके पीछे काम करता रहता है, जिसको कि हमें थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना चाहिए. हमें उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना पड़ता है कि आप इस समाज में किस तरह से उन प्रोडक्ट के द्वारा अपनी आइडेंटिटी आप गढ़ रहे होते, और आप साफ साफ उसमें फिर एक तरह का इस आइडेंटिटी के साथ ही एक तरह का डिफरेंस करना शुरू कर देते कि मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई. अदरवाइज आपको लगता है कि सारी बातें एक हैं. बहुत अच्छी बात है कि सारे धर्म एक हैं, और जो विवेकानंद और गांधी का आइडिया है सर्वधर्म समन्वय का, या रिलीजियस टॉलरेंस का, या रिलीजियस एक्सेप्टेंस का, या मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, यूनिवर्सल रिलीजन का. लेकिन इन एक्चुअल कंक्रीट मटेरियल सिचुएशन, when we assert our identity, whether it is a religious identity or social identity or a gender identity, then somehow we become intolerant towards other. This is what I am trying to emphasize, कि हम कैसे हो जाते हैं. तो जो विवेकानंद की पूरी आइडियोलॉजी या विवेकानंद का पूरा चिंतन है, उसमें अगर देखें तो वो रिलीजन को किस तरह से समझ रहे हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो कि हम खासकर फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो लोग पढ़ते हैं या समझते हैं, वो जानते हैं कि रिलीजन हैज 3 एस्पेक्ट्स. एक उसका ज्ञानात्मक कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, देन वी हैव ए इफेक्टिव एस्पेक्ट, एंड देन कोनेटिव एस्पेक्ट. सो विवेकानंद again and again trying to emphasize on the first very aspect, that is the cognitive one. होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं उस कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को, जिसको कहीं विवेकानंद वेदांत की पूरी मेटाफिजिक्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उपनिषद आइडिया है या वेदांत का आइडिया था कि जो मेरे अंदर आत्मन है और जो आप में आत्मन है, दोनों एक हैं, और एक तरह से एक लेवल पे जो ट्रांसेंडेंटल है, जो अभी आप बात कर रहे थे, हमारे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो सुषुप्ति अवस्था है, जो प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, उस लेवल पे क्योंकि बात एक ही है, तो फिर कोई विभेद, कोई कि जैसे ट्रेडिशन में कहा गया कि एकम सत्ता बहुधा वदंती, कि मार्ग एक ही है, और इस तरह से. लेकिन अगर इसकी व्यवहारिक पक्ष को देखें, इवन जो विवेकानंद के गुरु है रामकृष्ण जी, उनके पूरे, क्योंकि उन्होंने एक तरह की केवल फिलॉसफी नहीं की, उन्होंने इसका अनुभव करके एक्सपेरिमेंट किया. तो मैं कई बार ये सवाल उठाता हूँ कि जब रामकृष्ण की लाइफ को देखूं, तो जिन दिनों वो काली की पूजा कर रहे थे, उन दिनों वो मस्जिद नहीं जाया करते थे. जिन दिनों वो मस्जिद जाया करते थे, उन दिनों वो काली की पूजा नहीं किया करते थे. हालांकि उनको जो बाद के एक्सपीरियंस हुए, खासकर वेदांती तोतापुरी के साथ, तो फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कहीं ना कहीं सारे ये जितने भी धर्म है, इनका रास्ता है और मंजिल एक ही है. जो हम बात करते हैं कि सारी ये नदियां हैं, और विवेकानंद अपने भाषणों में, अपने उद्बोधन में ये बात बखूबी उठाते हैं. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रिलीजन का वो एस्पेक्ट कैसा है जिसमें कि
तुलसीदास जैसा आदमी जब उसको चित्रकूट के घाट पे भगवान राम कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं तो और वो कहते हैं कि तुलसीदास की आप जब तक धनुष बाण नहीं उठाओगे तब तक हम आपके नीचे सर नहीं झुकाएंगे। तो सवाल इसी का होता है कि रिलीजन में जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, फॉर इंस्टेंस इमोशनल, इफेक्टिव एंड कोनोटिव एस्पेक्ट्स, और जिससे कि रिलीजन कहीं न कहीं जाना समझा जाता है और उसमें ज्यादा जोर देने के कारण ये रिलीजियस इंटॉलरेंस या जितनी भी वैमनस से आता है कहीं ना कहीं हम उसमें जोर देते हैं, और उस जोर देते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को दूसरे के अपोजिट में खड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो विवेकानंद का जो सारा मसला था, मैं इस बात को उठाना चाह रहा हूं कि विवेकानंद जो मुझे लगता है कि टू माय माइंड विवेकानंद try to address the problem of religious conflict and intolerance, highlighting the importance of that cognitive aspect of religious life, where developed a much deeper understanding that is ultimate truth is one. It manifests in spatio-temporal world in a different form. To develop such understanding, one need to decipher the meaning and message of religious narrative, stories, tales like Rama, Krishna, Buddha, Mahabir, Muhammad, Jesus, and it shows that जिस तरह की रिलिजियोसिटी, जिस तरह की ट्रांसेंडेंट मैनिफेस्ट होती है, उसी तरह की ट्रांसेंडेंस बुद्ध में मैनिफेस्ट नहीं होती। तो रिलीजियोसिटी किस तरह से किसी रिलीजन में मैनिफेस्ट होगी, ये उसका हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है, निर्धारित करता है। ट्रांसेंडेंस अपने आप में निर्धारित नहीं। तो जब हम व्यवहारिक स्तर पे ये सारी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सारा मसला है रिलीजियस इंटॉलरेंस का या रिलीजियस इनइक्वालिटीज का है, हम वो छोड़ देते हैं उस एस्पेक्ट को, दैट वेरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंट, वेयर विवेकानंद अगेन एंड अगेन emphasizing on the yoga tradition or yoga through different yogas, for instance karma yoga, raj yoga and bhakti yoga, how to transcend that body mind complex. So whole idea, if you see, of religion is basically and primarily dissolution of ego, but more often people developed ego by associating with particular faith because it provides a certain identities. It becomes a matter of false pride and satisfaction of ego, since religiosity is constructed and nurtured in the emotional setup circumstances. There are chances that people remain captive of these negative emotions and express intolerance towards what we call other religious identities. But the main motive, what Vivekananda emphasized, is to channelize these negative emotions into positive emotions like compassion, cheerfulness, friendliness, and indifference. So this is the whole idea of Vivekananda ideology. Thank you so much. धन्यवाद पंकज जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इंटॉलरेंस के विषय में बताया। आज जो सबसे महत्वपूर्ण या कह ले कि समाज की ज्वलंत समस्या है, वो है इंटॉलरेंस, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो और सामाजिक स्तर पे हो। हम देखते हैं परिवार से, चूंकि समाज की एक इकाई है वो, और परिवार के अंदर ही एक दूसरे के विचारों
को लेकर के इतना ज्यादा असहिष्णुता है, कोई किसी की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है, दूसरे की विचारधारा को, दूसरे के विचार को, एक हमारी आम प्रवृत्ति हो गई है दूसरों को नकारने की। मैं ही सही हूं, मेरा विचार ही सही है और यही अंतिम है, यही अंतिम सत्य है। यही समस्याओं की जड़ भी है। अगर हम दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें, उनको हम अपनाएं और अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें हम तरजीह दें, तो सामाजिक समस्याओं का भी निदान हो जाएगा। क्योंकि परिवार से ही हम सीखते हैं और ये सहिष्णुता का लेसन अगर हमने परिवार से सीखा, परिवार में इसे अपनाया, तो निश्चित रूप से हम समाज में भी और समाज के अंदर जो विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जो धर्मावलंबी हैं, हम अगर उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके पूजा पद्धति को अगर हम स्वीकार्यता प्रदान करें कि वो भी ठीक है, उनका भी सोच ठीक है, तो विभिन्न सामाजिक समस्याओं का स्वतः निदान हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही ज्वलंत समस्या इंटॉलरेंस जो समाज के अंदर है उसकी ओर हम सबों का ध्यान आकर्षित किया है और एक समस्या का निदान कैसे होगा इस विषय में भी आपने बताया। मैं इसी के साथ गुड मॉर्निंग।